Welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B. Chemistry. Here, the channel goes to some topic which are related to the chemistry subject. As I explained in my previous two video, we will deal with some important topics of physical chemistry first, then we will go to the rest of the part of chemistry, that is organic and the inorganic portion. The first video of my lecture of this YouTube channel consists solid state chemistry, and in those two videos I explain the basic nature or the basic concept of the solid state chemistry, and in the lecture 2 we deal about the unit cell formula to memorize the types of unit cell and the structure of crystalline solid. I hope those two videos are helpful to you. If till now yet you don't watch that part, go for the part, then come to the lecture 3, because these are the part which are simultaneously attached to each other. If you don't watch that the lecture 2, then you can't understand the lecture 3, because lecture 2 and the lecture 3, they are collaborated to each other. I hope you understand the portion. So, myself Bishwajit Pal, my channel name is B. Chemistry. As I explained to you, in that channel we will have some basic concept about chemistry topics. So please subscribe to my channel, share it, like if it's knowledgeable to you, if it's helpful to you. And as I explained in my channel, it is always carried out to boost up your knowledge. So if you have any queries about my topics, about my lectures, about my concepts which I explain to you at every time, please write down a comment in the comment section. I will help you to figure out the problem what you have. So let's start our today's lecture. So here, as I explained in my previous two lecture, that we are going to have the topics about the concepts of cubic close pack structure, the concept of the arrangement of molecules in a unit cell structure. We have some defects, we have some numerical parts, and also there is another part which is something called the band theory. These are the part which we have to cover when we have the chapter that is named as solid state. Now the point is, in my previous two lecture, I was explaining regarding the basic solid state chemistry portion, that is the description of the types of solid state, their examples, how they exist, the intermolecular force they have. In my lecture 2, what I have in my lecture 2, I have the unit cell structure. There are 7 type of unit cell structure. Then we have the arrangement of atom in that specific unit cell. We have regarding 14 Bravais lattices, which is an incredible job that was done by a French mathematician Auguste Bravais in the year of 1848. So there are some several things which we already covered in those two lectures. I recommend to you, go for the lecture 2, watch it very carefully. If you have any problem, any queries, any doubt, go for the comment section. Comment section खुला हुआ है, comment करो. I will explain the thing that you have, the problem that you have. मिलके ही उसको figure out करेंगे फिर से. Okay, so the thing that we are going to discuss in today's lecture, just the thing that where we left our portion, is something called the solid state chemistry. Is something called the solid state chemistry. Important. Number of unit cell, number of atoms per unit cell. After having those 8 atoms, 7 atoms, in some case there are I think 8 plus 6 plus 15 atoms. In FCC N center we have around 8 plus 2, that is 10 atoms. There are several types of unit cell that we have, and when you put the atoms into that unit cell, you have different combination. Regarding that, you have 14 Bravais lattices regarding orthorhombic unit cell, regarding simple cubic, regarding monoclinic, and so on.
Now the portion that we are going to discuss, the number of unit cell, the number of atoms per unit cell, sorry. The first question come to our mind, sir ये चीज देखने की क्या जरूरत है? Because already we did that when you have a cube structure, this cube structure is something consist, जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद इसको एटम यहाँ पे दे रहा हूँ, ये 8 जगह में 8 एटम मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. I put 8 atom at the 8 corner. Now the point is if you put 8 atom at the 8 corner, तो इसमें ज्यादा बोलने की क्या बात है कि यहाँ पे 8 ही एटम होगा यूनिट सेल में. That's pretty simple. मैं बोलूँगा हाँ ठीक है चलो 8 एटम है, फिर ये तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आज का लेक्चर भी करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो बोलोगे सर तब तो आप बकवास कर रहे हैं. नाउ द पॉइंट इज मैं बकवास नहीं कर रहा, बिकॉज थोड़ी तो कोई रीज़न होगा, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये लेक्चर अलॉट कर रहा हूँ. नहीं तो मेरा भी कोई नहीं जाता कि 1 घंटे तुम लोग के साथ बकूँ मैं. समझ में आ रहा है ना कि? सो द पॉइंट इज when you have a unit cell structure which consists some atoms, it doesn't mean it consists 8 atoms, that is 8 atom per unit cell, whatever the unit cell is. If you go for the body center, then I think it was something looking like this. If you have the body center portion, then there are some several, here one, here one, here one, here one, here and here, the non-primitive part, and there was another atom which was there. So it is the part which is something represent the BCC, and if you go for this part, that is body center cubic unit cell. मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छे से देख लो, बॉडी सेंटर. मैं रिवाइज कर रहा हूँ फिर से वो लेक्चर जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, बार बार बोल रहा हूँ, वो लेक्चर एक बार देख के आओ. बहुत सही तरीके से मैंने वहाँ पे शॉर्टकट एक्सप्लेन किया है. जो भी है BCC, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जहाँ पे तुम अगर देखो तो यहाँ पे 8+1 आ रहा है. क्या आ रहा है? 8+1 इक्वल टू 9 एटम्स पर यूनिट सेल. अभी बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये करने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने बोला था, अभी FCC में जब हम लोग आएंगे, दैट इज फेज सेंटर में जब हम लोग आएंगे, तो तुम सर बोलोगे कि 8+6 फेज में 6 एटम है. ओ सॉरी, और तो कुछ नहीं है, सॉरी माई मिस्टेक, और तो कुछ नहीं है. 6 फेज में 6 एटम है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पर 14 आ रहा है, मतलब FCC में 14 एटम है. सर आप बोल रहे हैं 14 एटम है, आप बोल रहे हैं 9 एटम है, तो ये चीज़ तो उस दिन ही बता सकते थे, और करने की जरूरत थी. Now the point will come. We have the point of unit cell. यूनिट सेल का मतलब क्या था? मैंने बोला था यूनिट सेल इज अ बेसिक पैटर्न by which follow you got those kind of 3D gigantic structure, that is the structure of crystalline solid. Now बोलोगे सर आप ये चीज़ तो पहले ही बता चुके हो, तो अभी क्या बताने की जरूरत नहीं? अभी बताने की जरूरत है, बिकॉज यूनिट सेल का जो पैटर्न है वही तुम रिपीट करके वो जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर जो पहले दिन हमने दिखाया था लेक्चर 2 में, वो स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. अभी तुम्हारे पास यूनिट सेल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे में ही यही सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स. If they have the same repetition of the unit cell and the combination of atoms, then they should consist the same combination entire the structure. Now the thing is, if you have in the entire of structure, if you have this kind of combination, the first thing come to our mind, sir, तो ये चीज़ तो शेयर्ड में आएगा, बिकॉज इसके बाद अब यहाँ पे देखो मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा जज मत करना. यहाँ पे फिर मैं और एक यूनिट सेल यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से देखो ये चीज़ को, अगर मैं और एक यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, देखो और एक यूनिट सेल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. अभी और एक यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद पहला चीज़ जो आ रहा है, सर यहाँ पे भी तो एटम होगा, यहाँ पे भी एटम होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सब जगह में आएगा. अभी ये एटम का क्या होगा, या ये एटम का क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका क्या होगा? ये तो दोनों से शेयर्ड है, मतलब ऐसे करके ये भी शेयर्ड होगा, ये भी शेयर्ड होगा, ये भी शेयर्ड होगा, सारे तो शेयर्ड में आएगा. तो अगर सारे शेयर्ड में आ रहा है तो यहाँ पे 8 एटम कैसे बताऊं? बिकॉज देखो एक चीज़, अगर मान लो तुम एक चॉकलेट लेकर घर में आए हो, तुम्हारे घर में क्या है, 2 भाई है, तो दोनों भाई को वो चीज़ तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा. तो तुम्हारा तो पूरा चॉकलेट नहीं हुआ, हाफ हिस्सों में बच जा रहा है. नाउ द पॉइंट इज, ये एटम के लिए वैसा ही हो रहा है. ये एटम 8 यहाँ पे तुम देख रहे हो, लेकिन जब तुम इसका वो फुल 3D स्ट्रक्चर में आओगे तब पता चलेगा तुम्हें ये एटम तो फुल्ली इसका था ही नहीं, ये तो कुछ और था. समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो तुम देख रहे हो उतना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, द सेल शुड नॉट कंसिस्ट. नाउ द पॉइंट इज, सर कैसे निकाले? इतना बड़ा 3D स्ट्रक्चर तो याद नहीं रहेगा, तो उसको कैसे निकाले? देखो ये 2 तरीके हैं. तो फर्स्ट थिंग इज, तुम अपने घर को देखो, जैसे मैंने बोला था इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट द रूम दैट यू हैव,
जो रूम में तुम अभी बैठे हो, this is the standard example to explain the solid state structure, because this is the unit cell that you have. You put the atom into a perfect position, then you repeat the basic pattern and you have those 3D structure. If you have that pro forma, then you can easily judge that this is the system. I have to put those atoms, and depending on your imagination portion, you have to understand that those centers, जो भी कॉर्नर में, जैसे मान लो रूफ का जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर में जो सेंटर है वहाँ पे एक एटम होगा. अभी वो एटम कितने सेल्स से डिवाइडेड होगा ये तुम्हें तो पता होना चाहिए, बिकॉज जितना सेल से, जितना यूनिट सेल उसको शेयर करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो शेयरिंग पोर्शन है वो धीरे धीरे घटता जाएगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट तुम लाए हो और तुम्हारे घर में 2 है, उसके जगह 3 हो गया, उसकी जगह 4 हो गया, भाई या बहन हो गया, उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूशन घटता जाएगा. मतलब जो एक था वो धीरे धीरे 1/4 होता जाएगा, या 1/3 होता जाएगा, या 1/5 होता जाएगा, धीरे धीरे वो घटता जाएगा. नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर ये घटता जाता है, okay, it is going to be decreased by a simultaneous amount, then that chocolate is not entirely consumed by you, that is consumed by 4 other person also, so that is 1/4 that is consumed by you. अगर 4 लोगों में वो घटता है तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखना पड़ेगा, ये जो एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो कॉर्नर में जो बात कर रहे हैं, ये कितने हिस्सों से बटा हुआ है. जितना हिस्सों से बटा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये वाला जो मामला है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज द पोर्शन वेयर द यूनिट सेल number of atom counting is started, and this is the main fundamental portion that we have, because depending on that portion we will go to the numerical part जो आज हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं. Okay, so we'll start for the simple cubic, then go for the BCC, then go for the FCC, then go for the end center part. जैसे मैंने बोला था, BCC simple cubic is a primitive because 8 कॉर्नर में 8 एटम है, that is very simple. If you go for the FCC, then वहाँ पे non primitive है because 8 कॉर्नर में 8 एटम होने के अलावा भी अलग अलग जगह में होता है, that is it consists greater than 8 atoms. If you only consider the unit cell part, only consider the unit cell part, but that is not the practical. The practical thing is you have a gigantic 3D structure in which these unit cells are going to be repeated. So one atom is going to be shared by another unit cell. एक नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे हम लोग आएंगे कितने कितने होता है. Got the point? Start करते हैं. Now the point is, when you have, पहले इसको लिख लेते हैं. बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, पता नहीं चल रहा है, सॉलिड स्टेट पढ़ा है और कुछ, तो मैं खुद का वेरिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है. द पॉइंट इज, देखो पॉइंट बहुत सिंपल है. व्हेन यू हैव सॉलिड स्टेट का जो यूनिट सेल, जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, द पॉइंट इज कम टू आवर माइंड, दैट इज these 8 atoms, how much they shared by others, because when you draw the unit cell structure having this kind of orientation, there are some other thing that you have to draw, that is यहाँ पे भी एक आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, ये आएगा. ये चीज़ थोड़ा मेरा ड्राइंग ख़राब है, मैंने पहले दिन ही बताया था ये चीज़, तो थोड़ा इसको देख लेना, ये चीज़ को जो भी है, ठीक है. तो यहाँ पे एक आएगा, उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक आएगा, इसके ऊपर एक आएगा, तो हर जगह में तो यूनिट सेल ही भरा हुआ है. इसके साइड में आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, हर जगह में यूनिट सेल तो भरा हुआ है. और जब हर जगह में तुम्हारा यूनिट सेल भरा हुआ है, तो जो ये एटम है, ये एटम भी हर तरफ से यूनिट सेल से घिरा हुआ होगा. तो ज़्यादा वक्त नहीं लेके मैं ये चीज़ बताऊंगा. द पॉइंट इज, व्हेन द एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, ओके, व्हेन द एटम्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन द एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, ये चीज़ दिमाग में रख लो, ठीक है. जितना दिन पढ़ाई करोगे सॉलिड स्टेट को लेके ये रखना है. This atom is going to, particularly that atom, okay, is going to be shared by 8 corners. कितना corners है? 8 corners से ये चीज डिवाइड होने वाला है, ठीक है. मतलब 8 corners से मतलब 8 यूनिट सेल से एक एटम शेयर होने वाला है जो कॉर्नर में है, ठीक है.
भाई क्वेश्चन मेरे को सर ये कैसे आपको पता है 8 ही क्यों है, ये 6 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। देखो ये चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देखो ये तो 2 यहाँ पे मैं दिखा ही रहा हूँ, इसके ऊपर एक होगा, इसके ऊपर एक होगा, ये कितना हो गया 4 हो गया, मतलब ये एक है, ये एक है। अच्छा चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये पहले एक आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद इसके ऊपर वाला भी एक आएगा, इसके ऊपर वाला भी एक आएगा, तो कितना हुआ 4 हुआ। अभी देखो इसके यहाँ पे एक आएगा, ये भी हुआ, इसके यहाँ पे एक आएगा, ये भी हुआ, और ये जो यहाँ पे आएगा इसके ऊपर भी जो होगा वो भी आएगा, और इसके ऊपर भी जो आएगा वो भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा समझा पा रहा हूँ कि नहीं, और एक बार रिपीट करूँ। देखो ये दोनों तो साइड में है, ये तो हो ही गया। तो इसके ऊपर एक यूनिट सेल आएगा, यहाँ पे एक क्यूब आएगा तो वो आएगा, इसके ऊपर और एक क्यूब आएगा, जो भी आएगा, तो 4 यहाँ पे तो हो गया, 4 तो ये एटम को शेयर कर लिया है, ठीक है। और ये होने के बाद इसके पास में एक यूनिट सेल आएगा जिसका एज ये होगा, और इसके पास में एक यूनिट सेल आएगा जिसका एज ये होगा, ठीक है। तो हो गया 6। और उसके बाद अगर ये वाले के ऊपर तुम एक काउंट करो तो ये वाले के ऊपर क्या आएगा, मतलब जो वो भी यही शेयर करेगा, बिकॉज वो ये एज शेयर करेगा, इसके ऊपर वाला ये शेयर करेगा, इसके ऊपर वाला ये शेयर करेगा, मतलब ये एटम तो कॉमन है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एटम तो कॉमन है भाई, मतलब 8 हिस्सों से ये बट रहा है। तो 8 यूनिट सेल इक्वल टू 1 एटम, तो मतलब 1 यूनिट सेल में कितने एटम आएगा, 1 यूनिट सेल शेयर कर रहा है वो 1/8 से। जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैंने क्या बताया, मैंने बताया ये चीज़ कि सर आप लाए हैं एक चॉकलेट, आपके घर में 4 बहन है, या यू हैव 4 सिस्टर्स और द 4 ब्रदर्स, व्हाट यू हैव, व्हाट एवर द कॉम्बिनेशन 2 सिस्टर 2 ब्रदर, व्हाट एवर द कॉम्बिनेशन दैट यू हैव, एंड दिस 4 chocolate is going to be distributed into 4 persons. That means for per person it is consumed 1/4. Now the point is, if it's the reality part, then you have to the chocolate is going to be distributed in 1/4. So here I explained that 8 unit cell is distribute this atom. That means 8 unit cell is distribute 1 atom, then 1 unit cell is distribute 1/8 atom. मतलब कितना आ रहा है, एक में आ रहा है 1/8। तुम्हारे यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एटम है, मतलब ये 1/8 एक का आ रहा है, मतलब एक का हिस्सा, अभी एक का जो तुम पहले पकड़ रहे थे वो अभी आ रहा है 1/8 हिस्सा। ओके, दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन 1/8 अमाउंट। मतलब एक एटम जो पहले तुम पकड़ रहे थे कि बोल रहे थे सर 8 एटम है, गिनने की क्या जरूरत है, वो कितना आ रहा है, वो अभी आ रहा है एक के लिए आ रहा है 1/8। तो तुम्हारे पास कितना नंबर ऑफ एटम है, तुम्हारे पास है 8 एटम्स, तो कितना आएगा 1/8 इंटू 8, कितना आएगा 1। देखो कहाँ पे हम लोग आ गए। ओके, वी स्टार्ट बाय ड्रॉइंग अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर विच इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस। ये दिखने में कुछ ऐसा था, ये मैंने सिंपल क्यूब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक क्यूब ड्रॉ किया, क्यूब ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे 8 सेंटर में 8 एटम यहाँ पे डाल रहा हूँ। बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 एटम था जो पहले आप बोल रहे हो, अभी कितना बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो कि सर एक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो एक एटम है इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1/8 से, मतलब ये एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। दैट मीन्स एक का हिस्सा कितना हुआ 1/8। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना एटम है, तुम्हारे पास 8 एटम है, तो 8 का हिस्सा कितना होगा 8 इंटू 1/8, कितना आएगा 1। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना आ रहा है, सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम जिसको लिखा जाता है, अच्छा लिख लो, ये चीज लिखा जाता है जेड से। ओके, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ रहा है 8 इंटू 1/8, कितना आ रहा है 1। अच्छा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तुम्हारा आ रहा है 1। बहुत सिंपल है, जेड इक्वल टू आ रहा है 1। Z हम लोग लिखते हैं, we consider Z when you consider the number of atom per unit cell as a symbolization. So Z equal to 1 for the simple cubic structure. I hope you understand the portion. कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया, ये वाला चीज़ जो मैंने बताया थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, तो कमेंट सेक्शन में करो, मैं सेपरेटली समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई चैनल। ओके, there should not be any lagging regarding concept. Okay, so the point is सॉलिड स्टेट का पहला वाला जो क्यूब है दैट इज सिंपल क्यूब, उसके लिए हम लोग ये चीज देख लिए। अभी एक डायग्राम में तुम्हें दिखाऊंगा जिससे ये चीज और भी इजी हो जाएगा, जो पता चल जाएगा कि सर ने जो चीज बताया ये तो मेमोराइज करने के लिए कि 8 एक से शेयर हो रहा है तो एक कितना से होगा, और मैं और एक चीज बताऊंगा उससे और भी ये चीज क्लियर हो जाएगा। एक पिक्चर देख लो।
तो ये पिक्चर देखो अच्छी तरीके से, ये पिक्चर क्या बता रहा है, ये पिक्चर बता रहा है कि तुम्हारे पास अगर ये सिंपल क्यूबिक का फॉर्मेट है जो था, उसको अगर ये क्यूब को तुम हटा दो, बिकॉज पहले दिन मैंने बताया था, जब मैंने क्यूब जब यूनिट से जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि ये जो चीज़ है ये दिखने में अलग है भाई साहब, ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, ये अलग अलग दिखने में लगता है। तो ये चीज़ जो है ये ऐसे होता है, ठीक है, they are just interconnected to each other, this is not looking like this part, okay, जो मैं हम लोग ड्रॉ करते हैं इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, दिस इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस पार्ट। फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन, फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन वी डू this portion to recognize, to understand the structure of the crystalline solid. I hope you understand the portion. Now the thing is, if this is the point, then जैसे मैंने दिखाया, देखो यहाँ पे जो structure है, this is something represent this one corner, this one corner is distributed is by 8 unit cell, that means 1/8 शेयरिंग आ रहा है, ओके और जो दिखने में कुछ ऐसा है, प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं बट लिखना ऐसा चाहिए। अभी स्टार्टिंग में अगर किसी को मान लो ऐसा पढ़ा दिया कि सर यूनिट सेल ऐसे दिखने में लगता है, तो बोलेगा सर सॉलिड स्टेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए और कोई चैप्टर पढ़ाइए। समझ में आना है कि नहीं? सो द पोर्शन इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू कंसिडर द 1/8 position diagram of the unit cell. So that's why we start from this portion and then we go to that part. Okay, so if for the simple cubic, ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, for the simple cubic unit cell, ये चीज़ याद रखो बहुत सही तरीके से। यूनिट सेल कितना आ रहा है, z का वैल्यू, z का वैल्यू आ रहा है 8 × 1/8, that will become 1। ये z क्या है, ये z का मतलब है नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ एटम, एटम ही यहाँ पे लिखते हैं चलो, बिकॉज एक ही एटम है यहाँ पे, अच्छा चलो एटम्स लिखते हैं चलो, पर यूनिट सेल, ठीक है, कितना आ रहा है वैल्यू, वैल्यू आ रहा है 1। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज़ द पोर्शन दैट यू हैव टू मेमोराइज, बिकॉज इसको लेके बहुत सारे चीज़ें हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट में। ओके, सो वी स्टार्ट फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विच इज़ अ पार्ट ऑफ, क्या पार्ट था ये पार्ट था प्रिमिटिव का, याद है ना, प्रिमिटिव का ये पार्ट था, प्रिमिटिव यूनिट सेल के ये पार्ट था। तो नॉन प्रिमिटिव में हम लोग इसके बाद आएंगे, जिसमें हम लोग बीसीसी और एफसीसी को देखेंगे। I hope you understand the point. Okay, so let's start with BCC. Now, when you have the BCC structure, which is something looking like body centered cubic unit cell, which is something looking like this. चलो कुछ और लेते हैं, कलर लेके ड्रॉ करते हैं, बहुत सही दिखने में लगेगा। क्या आ रहा है, अच्छा ये है हम लोग का स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 8 कॉर्नर में 8 एटम डालेंगे, बहुत सही है, 8 कॉर्नर में 8 एटम डालो, ये चीज़ खुद के हाथ में करना तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक एटम हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे, बीच में एक एटम डालेंगे, ठीक है, जो बॉडी सेंटर का था। मैंने बोला था कि ये जो बीच का एटम है, ये बीच का एटम ऐसे नहीं है, ये लगा हुआ है सारे चीज़ों से, सारे जो 8 एटम हैं सबसे ये चीज़ लगा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे ये लगा हुआ है, ऐसे नहीं है ये एटम, ठीक है। सो द पार्ट इज़, ये ऐसे जस्ट स्टे डाउन कर रहा है, ऐसे रिलीज़ कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी, दे आर ऑल एसोसिएटेड टू ईच अदर बाय देयर कनेक्शन, बाय देयर बॉन्डिंग एंड ऑल। ओके, तो ऐसे कोई एटम तो हो नहीं सकता, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशन इट इज़ गोइंग टू बी इन ग्राउंड स्टेट, ऐसे ऊपर तो ऐसे वैक्यूम में no atom, no system can't stay। ओके, सो द पॉइंट इज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसी, तो ये चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूजन मत होना। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज व्हेन यू डिस्कस द जेड वैल्यू, द फर्स्ट थिंग कम टू आवर माइंड दैट इज 8 × 1/8, वो तो सिंपल होगा बिकॉज प्रिमिटिव वाला जो पोर्शन है वो सबके लिए सेम होता है। अभी नॉन प्रिमिटिव में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला एटम, करेक्ट ही करेक्ट ना, ये आ रहा है नॉन प्रिमिटिव में हम लोग का एक्स्ट्रा। अभी अगर ये हम लोग का एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसके लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, अभी अच्छे से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। अब जो तुम घर में हो, जो तू रूम में हो, वो रूम को कंसीडर करो, जो 8 कॉर्नर है तुम्हारे रूम के, वो 8 कॉर्नर में तुम 8 एटम बैठाओ, यू पुट 8 एटम इन दैट 8 कॉर्नर एंड यू हैव एन एडिशनल एटम विच इज जस्ट कमिंग टू द सेंटर ऑफ द हाउस। And when you consider that atom in the center of the house, the first thing come to our mind, this is not going to be distributed by anyone, because this is center of this room, और ये रूम के बीच में है, और ये रूम एक ही रूम है,
ये रूम किसी से शेयर्ड नहीं है, दिस इज़ अ वन रूम दैट यू हैव। ये खिड़की नहीं है, ये विंडो नहीं है, ये कोई डोर नहीं है, दिस इज इन योर सेंटर ऑफ द रूम, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड बाई एनी वन, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड बाई एनीवन। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूँ कि ये वो जो चॉकलेट का एग्जांपल मैंने दिया था, तो चॉकलेट तुम घर लेके आए, अभी क्या किया तुमने, किसी को नहीं दिखाया, तुमने क्या किया, चुपचाप घर में आया, डोर लॉक किया और चॉकलेट खा लिया, बात खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1 में से 1, मतलब एक एटम एक को शेयर कर रहा है, दैट मीन्स ये जो बीच वाला एटम है उसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, उसके लिए कंट्रीब्यूशन आएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 plus 1, because this atom is not going to be shared by anyone, that is this one, okay, not share, this is not going to be shared by anyone, that means it is the inbuilt property of this unit cell, that means 1 plus 1, that will become 2, so z equal to 2, that is for the body centered number of atom per unit cell। समझ में आ रहा है कि नहीं? number of atom per unit cell, that's very important to understand, okay। Now we will go to the part that is something called FCC। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। स्टार्ट करते हैं, बहुत सही है, चलो। तो FCC में क्या आ रहा है? FCC में हम लोग स्टार्ट करेंगे FCC को ड्रॉ करके ही, तो FCC को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे इसके FCC के ऊपर। ये हो रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, मेरा ड्राइंग ख़राब है, ये तुम लोग को मालूम है, 2 क्लास में तो समझ ही गए होंगे, सर का हैंड राइटिंग बहुत ही बकवास है, जो भी है थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये 8 कॉर्नर में 8 एटम आएगा, बहुत सही है, 8 कॉर्नर में आ रहा है 8 एटम, बहुत सही है, ओके, दैट्स प्रीटी करेक्ट। देन वी विल गो टू द बॉडी सेंटर पार्ट। ये बहुत सही से देना, देखो यहाँ पे एक है, ये दे रहा हूँ, यहाँ पे एक है, ये दे रहा हूँ, यहाँ पे एक है, ये देना हूँ, ये फेस में एक है, ये देना हूँ, ये वाले फेस में यहाँ पे एक है, ये दूंगा, और उसके उल्टे वाले फेस में यहाँ पे एक है, ये दूंगा। 6 फेस में 6 एटम दूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड द पोर्शन इज, वही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। व्हेन यू आर एट योर रूम, जस्ट लुक एट द रूम, तुम 8 कॉर्नर है तुम्हारे रूम में, 8 एटम वहाँ पे डालो, और जो खिड़की है, जो वॉल है, इन दैट वॉल यू हैव टू पुट एन एटम। जैसे खिड़की होता है, ठीक है, वैसे ही तुम एक एटम वहाँ पे डालोगे, कि एक वॉल के बीच में ही तो खिड़की होता है, सो वैसे ही तुम वहाँ पे एक एटम डालोगे, खिड़की मतलब विंडो, ओके, वहाँ पे भी तुम एक एटम उसमें डालोगे। एंड द पोर्शन इज, इफ दैट एटम इज ऑन द वॉल, वॉल इज अ पोर्शन विच इज अ बाउंड्री बिटवीन 2 रूम्स। मान लो ये वाला रूम में जो बैठा हुआ हूँ, उसके इसके पास वाले रूम में मेरा और एक रूम है, वो पास वाले रूम में जो मेरा और एक रूम है, वो रूम, ये जो मतलब ये जो रूम का जो वो एक हिस्सा है, ये मान लो ये एक वॉल है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये वाला रूम मेरा है, और इसके पास वाले और एक रूम है, तो ये पास वाला जो रूम है, ये रूम, ये वॉल से, जो वॉल यहाँ पे है, ये वॉल से ये दोनों रूम शेयर्ड है, कि ये वॉल ये रूम का भी हिस्सा है और ये वॉल ये रूम का भी हिस्सा है। दैट मीन्स दिस वॉल इज गोइंग टू बी शेयर्ड बाय इंडिविजुअल दिस 2 रूम्स। तो अगर ये खिड़की का भी बात कर सकते हो तुम, एज एन एग्जाम्पल, खिड़की का मतलब यही है कि ये दोनों घर को एक कनेक्शन में रखे, तो दैट खिड़की और दैट विंडो इज गोइंग टू बी शेयर्ड बाय दिस 2 रूम्स विच आर जस्ट अटैच्ड टू ईच अदर। So when the wall is going to be shared by 2 room or the 2 unit cell, okay, that means the atom that is attached to that wall, it is also going to be distributed between, it is also going to be distributed between these 2 unit cells। That means if you consider these atoms, okay, then it is going to be distributed by 2 unit cell। मतलब 2 unit cell मतलब कितना एटम, 2 unit cell मतलब आ रहा है तुम्हारा एक एटम। समझ में आ रहा है? 2 रूम के जैसे मैंने बताया वैसा ही है, मतलब एक यूनिट सेल में ये कितना आएगा, एक यूनिट सेल में ये आएगा हाफ एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रख लो। ये फेस सेंटर वाला जो है, द फेस सेंटर वन, ओके, ओनली फॉर द फेस सेंटर वन, दिस फेस सेंटर वन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और गोइंग टू बी शेयर्ड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 2 रूम। जैसे मैंने बताया, वॉल का जो रूम है दैट इज सेपरेट, दैट इज कनेक्ट टू रूम्स, जो वॉल है, ओके।
नाउ द पॉइंट इज व्हेन यू कंसीडर द जेड, व्हेन यू काउंटर द जेड पार्ट, जब तुम जेड कैलकुलेट करोगे यहाँ पे जेड कितना आएगा, जेड आएगा 8 इंटू 1/8 जो प्रीमिटिव के लिए आता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक एटोम जो फेज वाला है दैट इज शेयर्ड बाई हाफ। एक कितने में कन्वर्ट हो रहा है, एक कन्वर्ट हो रहा है हाफ में। तुम्हारे पास इतना कितना एटम है, तुम्हारे पास है 6 एटम। दैट मीन्स हाफ इंटू 6 दैट विल बिकम 1 + 3 = 4। जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। यही आता है फेस सेंटर के लिए, जेड का वैल्यू 4 आता है। बॉडी सेंटर के लिए जेड का वैल्यू 2 आता है। और जब सिंपल क्यूबिक के बाद हम लोग कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू आता है 1। दिमाग में ये चीज़ रख लो, ये चीज़ बहुत काम में आने वाला है। z = 1, z = 2, z = 4. For the FCC, we have z = 4 because 8 into 1/8 plus 6 into half. What is half? Half, that means that I explained to you, that is the wall that is going to be distributed or shared between two rooms. And also 6 means you have 6 face in your room which consists 6 atoms. Which consists 6 atoms, that means 6 into half, that will become 4. So z = 4, which is something called the FCC. ओके, सो बीसीसी में कितना आया था, बीसीसी में आया था 2। सिंपल क्यूबिक ने पहले वाला किया था जिसमें आया था 1, और यहाँ पे z = आ रहा है 4। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोर्शन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज बीसीसी, दैट इज z = 1, एफसीसी = z = 4, सिंपल क्यूबिक में z = 1। लास्ट जो पड़ा हुआ है नॉन प्रिमिटिव में, दैट इज समथिंग कॉल्ड एंड सेंटर cubic unit cell. Now the point is, in every case we take cube as our standard source. जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक भी ले सकते थे। We have the choice of other unit cell, but I think it is preferable to go for the cube because it is a very useful structure for us, which is, I think it is known to everyone. It is known to everyone. That will make that will not make any kind of confusions फॉर द स्टूडेंट। सो दैट्स वाई ऑर्थोरोम्बिक भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्यूब लेके बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड वन टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई इन एवरी केस वी टेक बीसीसी, एफसीसी एंड ऑल्सो एंड सेंटर क्यूब, और सिंपल क्यूबिक तो पहले हम लोग ने लिया ही था। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो द नेक्स्ट वन, फॉर द नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव, फॉर द नेक्स्ट वन वी हैव अ end center structure which is something looking like this. Okay, so for the in center, what are the thing that we have, the thing that we have here, we have 8 corners, 8 atoms, which are very easy to understand. And then we have some other part that is the in center, that mean यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा। ये मैंने तुम लोग को समझाया था, बोला था कि जो रूम में तुम हो, एक रूफ है जो ऊपर है, that is something represent 1 atom, और जो बेस जो नीचे है, हाँ, वो है वहाँ पे 1 एटम है। मतलब फेस में ही है, अलग कुछ नहीं है, फेस में ही है, अलग कुछ नहीं है। मतलब ये जो z का वैल्यू आएगा फॉर द एन सेंटर, ओके, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं एन सेंटर्ड, ओके, एन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज प्रीटी easy to understand. If you go for the part, the z = क्या आ रहा है, 8 into 1/8, it's pretty easy, जैसे पहले था। और ये दोनों तो फेस का ही एटम है, these are not something very unusual one, these are the face atoms, okay। तो फेस एटम का मतलब कितना आ रहा है, तुम्हारे एक का आएगा हाफ, तुम्हारे पास कितना है 2, तो 2 into हाफ कितना आ रहा है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो z का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2। तो इन सेंटर में कितना आएगा z का वैल्यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, z = 2। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, बिकॉज अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आया कि सर कैसे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैसे 8 कर रहे हो, कैसे 1/8 कर रहे हो, देन आई थिंक इट शुड बी नॉट द पार्ट टू वॉच द वीडियो, ओके। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं भी हमेशा करता हूँ, कोई भी चीज़ तुम कोई भी किसी को सिखा रहे हो, डू विथ योर मैक्सिमम एफिशिएंसी। और कोई भी चीज़ जब तुम सीख रहे हो तो उसमें भी तुम्हारा मैक्सिमम एफोर्ट होना ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट दैट वी हैव, जो हम लोग नहीं करते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दैट शुड बी नॉट द रिजल्ट। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, टेक योर 100% अटेंशन टू दैट पार्ट। अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स योर जॉब टू डू, माई जॉब टू डू, टू लर्न यू द टॉपिक्स एंड ऑल, okay। Your job is to learn the topic, my job to teach you, your job to learn you, that's enough। Now the thing is, this is the part of n center cubic unit cell जहाँ पे आ रहा है z = 2। सो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव में, उसके बाद लिखेंगे यूनिट सेल, ठीक है।
उसके बाद लिखेंगे z, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या आ रहा है वैल्यू? वैल्यू आ रहा है यहाँ पे z, सही कि सही नहीं? सही आ रहा है z। तो टाइप्स में दो टाइप है, एक है प्रिमिटिव और दूसरा क्या है, दूसरा का नाम है नॉन प्रिमिटिव। चलो देखते हैं क्या क्या आता है। अच्छा, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना हम लोग ने लिखना है? यूनिट सेल में हम लोग ने देख रहा है पहला वाला जो देखे है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है, z का वैल्यू आ रहा है 1, बिकॉज दिस इज 8 इंटू 1/8, दैट विल बिकम 1। ओके, स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ देख लेना थोड़ा। उसके बाद हम लोग किस में आ रहे हैं? उसके बाद हम लोग आ रहे हैं प्रैक्टिकली BCC में, दैट इज़ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कितना आ रहा है z का वैल्यू? z का वैल्यू आ रहा है 2। क्यों आ रहा है? बिकॉज 8 इंटू 1/8 प्लस आ रहा है 1, दैट विल बिकम 2। ओके, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं किस में आ रहा है? उसके बाद हम लोग आ रहे हैं FCC में, फेस सेंटर यूनिट सेल। उसमें कितना आ रहा है? उसमें आ रहा है 4। क्यों 4 आ रहा है? बिकॉज दैट इज समथिंग रिप्रेजेंट 8 into 1/8 which is common to everyone, and then 6 into half, that will become 4। okay, and the last one that we have, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एंड सेंटर, जिसका नाम है एंड सेंटर। तो एंड सेंटर के लिए कितना आ रहा है? एंड सेंटर के लिए आ रहा है 2, दैट इज बिकम 8 into 1/8 प्लस कितना आ रहा है? 2 into हाफ। तो ये चीज़ जो है, जो मैंने बता रहा है, दिस आर द पार्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रिमिटिव। सो ये चीज़ जो मैंने बताया, ये चीज़ तुम्हें दिमाग में रखना है जितना दिन तुम ये सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर कर रहे हो। दिस इज़ द मोस्ट जीस्ट पार्ट दैट यू हैव। तुम स्क्रीनशॉट ले लो, तुम कुछ भी ले लो, बट दिस इज़ द पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ओके, सो हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग वी विल गो फॉर सम न्यूमेरिकल पार्ट विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर और द यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली कुछ फॉर्मूला निकालना होता है। आफ्टर हैविंग दोस यूनिट सेल स्ट्रक्चर, तुम्हें एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशंस, यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ दैट सर्टेन क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज A2B, AB2, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ए एटम है, अगर बी एटम है तो AB आएगा या AB2 आएगा या A2B आएगा, वट एवर द थिंग इज, यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो उसके लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा बूस्ट अप होगा, और यही हम लोग का कॉलेज का मोटो है, टू बूस्ट अप योर नॉलेज। ओके, सो लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, सो हियर आर द न्यूमेरिकल्स ऑन फॉर्मूला प्रेडिक्शन। जैसे मैंने तुम्हें बताया, जो चीज़ हमने अभी देखा अबाउट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वी विल हैव some information about our crystalline solid, and we have to find out the formula of that certain compound। ठीक है, तो कैसे देखते हैं? चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक एटम है, एक कंपाउंड है, दैट इज मेड अप बाय 2 एलिमेंट, दैट इज A and B। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट क्रिस्टलाइन इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, A atom occupy all the corners and face centers, and B atom occupy 8 centers as well as the body center। तो बहुत क्रिटिकल एक चीज़ दिया गया है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा हम लोग का जो आंसर है वो भी। अभी देखो, नाउ द पॉइंट इज़, हम लोगों ने किया अबाउट कॉर्नर्स, कि कॉर्नर्स में अगर एटम होता है, सो इन दैट पार्ट इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूट 1/8। अगर फेस में एटम होता है तो इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूट हाफ, और अगर बॉडी में एटम होता है, बॉडी सेंटर में होता है, तो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट फुल। ओके, और एक जगह होता है जिसको बोला जाता है हम लोग एथ सेंटर। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एथ सेंटर। वो एथ सेंटर के लिए कितना होगा? एथ सेंटर के लिए होगा 1/4। अभी ये चीज़ मैं तुम्हें अभी के लिए इतना ही समझ लो, बाद में मैं इसको डिस्कस करूँगा कि 1/4 कैसे होता है। जैसे इन लोगों का 1/8 होता है, इसका हाफ होता है, जैसे मैंने समझाया कि इसका कैसे 1/8 होता है, ये चीज़ मैं तुम्हें समझा दूँगा कुछ बाद। तो जो भी है, 1/4 ये तुम्हें याद रखना है कि एथ सेंटर के लिए 1/4 होता है, कॉर्नर्स के लिए 1/8 होता है, फेस सेंटर के लिए हाफ, और बॉडी के लिए 1। एथ सेंटर का मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो यहाँ पे मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। आफ्टर हैविंग दिस क्यूब, if I have the number of atoms which are distributed in that format, okay,
यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे इसको बोला जाता है एथ सेंटर. ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड द एथ सेंटर पार्ट. ओके, and when you talk about this is the part of the eighth center, this eighth center is going to be this atom, ठीक है. This is going to be distributed by 4 unit cell, that means the sharing portion is 1/4, इसलिए मैंने लिखा है इसका 1/4. ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड द एथ सेंटर एटम्स. तो जो भी है उसके बारे में फिर डिस्क्राइब में बताऊंगा, जैसे बाकी लोगों को मैंने बताया है. फर्स्ट वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल. तो यहाँ पे एक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ए जो एटम है, दैट एटम इज इन द कॉर्नर. ओके, तो ए का नंबर हम लोग निकालेंगे. क्या आ रहा है ए का नंबर? ए का नंबर आ रहा है 8 × 1/8, बिकॉज ये कॉर्नर में है. लिखा हुआ देखो, ऑक्यूपाई कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर. फेस सेंटर में कितना होता है? 6 होता है एटम. क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? हाफ करके. तो कितना आ रहा है ए का अमाउंट यूनिट सेल में? एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है? 1 × 1 + 3 कितना आ रहा है? 4. समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सही है. एटम ए का जो कॉर्नर है वो दैट इज ऑक्यूपाइड बाई 8, obviously 8 A atoms that are distributed into 1/8 part. So 8 × 1/8 plus 6 × half, that will become 1 + 3, that will become 4. समझ में आ रहा है कि नहीं? That is a very important part to understand. Okay, go for the B. बी में कितना आ रहा है? बी में देखो, बी के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑक्यूपाई एथ सेंटर. एथ सेंटर मतलब एथ सेंटर में मैं बता दूँ ये चीज़. एथ सेंटर में जेहेतु यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 12 एजेस है. देखो मैं गिनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पे 12 एजेस हैं. ओके, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट 12 एजेस, इफ ईच एज कॉन्सिस्ट 1 एथ सेंटर एटम, तो यहाँ पे कितना होगा? 12 एटम होगा. यू हैव 12 एटम. Okay, you have 12 atom, which for the per atom it is going to be distributed or shared by 1/4. So for one atom it is going to be something 1/4. ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको, ये अलग है. तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना एटम है? तुम्हारे पास 12 एटम है. तो कितना आएगा? 12 के लिए आएगा 12 × 1/4, दैट विल बिकम 3. अभी कोई भी जगह मिस होता है एटम तो वो अलग बात है, लेकिन 12 × 1/4 दैट विल बिकम 3. सो बी हैज़ अ वैल्यू ऑफ, कितना आ रहा है बी का वैल्यू? यहाँ से 3 आ रहा है. ठीक है, एथ सेंटर से. और कहाँ पे है? बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर तो इंडिविजुअल वो कंट्रीब्यूट करता है, तो 3 + 1 दैट विल बिकम 4. तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इज 2, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी. ए और बी का नंबर ऑफ एटम तुम्हें यहाँ पे रेशियो करना है. ओके, रेशियो करना है. रेशियो करना है ए और बी का. बहुत सिंपल है. ए का कितना आ रहा है? 4. बी का कितना आ रहा है? 4. नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल के अकॉर्डिंगली ये 4 आ रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के अकॉर्डिंगली ए आ रहा है 4, बी आ रहा है 4. मतलब ए है 4, ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, लेकिन शेयरिंग के अकॉर्डिंगली इट बिकम 4, एंड फॉर द बी ऑल्सो इट बिकम 4. सो 4:4 दैट विल बिकम, कितना आ रहेगा? 1:1. तो ए का अमाउंट कितना है? 1. बी का अमाउंट कितना है? 1. तो क्या आएगा फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड. फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा A1B1, दैट विल बिकम AB. So this is the formula of this entire molecule. This is the formula of this entire molecule, AB. Okay, what is the formula of the compound? This is the formula of the compound, AB. So that is our answer also. So ये questions बहुत ही common है regarding various kind of competitive exams and also the board exams. So this portion has to be covered by you verifiedly. अगर कुछ भी चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आया हो, so comment section खुला हुआ है, go for that part. Okay, so this is, पहले तुम्हें वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो यूनिट सेल है उसके अकॉर्डिंगली एक डिस्क्रिप्शन इमेजिनरी फेज में बिठाना है. देन count the number of atom of A, for B, for that specific arrangement in that specific unit cell, in that specific unit cell. Then you can find out the value of A and the value of B. Then you have to ratio it, A:B, it will become AB. यहाँ पे 4:4 आ रहा है तो AB, कुछ अलग भी आ सकता है, A2B, AB2 को भी कोई भी आ सकता है. यहाँ पे 1:1 आ रहा है, that will become AB. So the formula of the compound is AB. I hope you understand the part. So go for the numerical number 2. So what is numerical number 2? Numerical number 2 in which it's stated that a unit cell consists of a cube in which X atoms are at the corners and Y atoms are at the face. If 2 atoms are missing at the corners of the unit cell, what is the formula of the compound? क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? इसके बारे में लिखा हुआ है X के बारे में क्या लिखा हुआ है? X लिखा हुआ है कॉर्नर में है. ठीक है,
तो अगर कॉर्नर में होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कॉर्नर में होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और वाई एटम कहाँ पे, वाई एटम में बोला गया है वाई एटम है फेस सेंटर में, वाई एटम है फेस सेंटर में। अगर वाई एटम फेस सेंटर में है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 6 इंटू हाफ दैट विल बिकम 3। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक लिमिटेशन दिया गया है, इफ़ टू एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम टू कॉर्नर्स, मतलब if you have the crystal structure which is something looking like this, okay, which is something looking like this, then these A atoms are in there, these are the A atoms that we have, okay, these are the A atoms that we have, and if you go for the B atom, then B atom it should be in face center, जैसे लिखा हुआ है it should be in face center, but the point is two atoms are missing from their usual position, okay. अच्छा sorry my mistake, two atoms is not missing at the face, it is missing from the corners। तो यहाँ पे 8 एटम तो है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 एटम है, जो ए का जो है ये ए का है, ठीक है, और ये किसका है, ये बी का है। तो यहाँ पे 2 एटम है जो ए से मिसिंग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द 2 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, मतलब कितना आ रहा है तुम्हारे पास आ रहा है जो एक्स है, ठीक है, एक्स आ रहा है, कितना आएगा अभी 6 इंटू 1/8, बिकॉज अभी कितना हो गया है 6 हो गया है। अभी बोलोगे सर 6 कैसे हुआ, 6 कुछ ऐसे हुआ कि तुम्हारे पास 8 था पहले, अच्छा ये एक्स है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये एक्स है और ये वाई है, तो जो भी है ये तुम्हारे पास पहले था कितना, तुम्हारे पास पहले था 8, अभी कितना हो गया 6। क्यों हो गया 6, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है देखो साफ तरीके से 2 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, 2 एटम्स आर मिसिंग फॉर द 2 कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो एक्स का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, एक्स का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, वो होगा 3/4। और अगर वाई के बारे में बात करूँ तो वाई के कितना आ रहा है, वाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वैसा दिया नहीं गया है, तो वाई होगा 3। सो एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या आ रहा है 3:, ये आ रहा है, तो मतलब कितना आ रहा है, सॉरी ये इस टू है, ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/4:1, सही कि सही नहीं, सही बात 1/4:1। तो इसको अगर करो तो क्या आएगा 1:4, मतलब x का अमाउंट कितना है 1, y का अमाउंट कितना है 4। रेशियो कितना आएगा, बहुत सिंपल है, रेशियो आएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा XY4, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा XY4, वो x1 है y4 है, तो इट विल बिकम x1 y4 लिख सकते हो, मैं प्रेफर करूंगा XY4 लिखने की। समझ में आ रहा है कि नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इज यू हैव x atoms at all the corners, but the limitation is here 2 atoms are missing for the corner, so it will become 6. So 6 into 1/8, 6/8, that will become 3/4. 6 into half, that is they are saying that y are at the face center, so it doesn't matter, 6 into half equal to 3, so यहाँ पे कोई limitation नहीं है, so x is to y become XY4, x is to y become 1:4, and that will the formula become XY4। समझ में आ रहा है कि नहीं, that is pretty simple to understand, ठीक है। दूसरे में जाते हैं। Okay, so the numerical number 3, in the numerical number 3 what we have a FCC arrangement, मतलब यहाँ पे बोला दिया गया है कि FCC arrangement है, यहाँ पे A atoms और जो B atoms है, A atoms are at the corners and the face center of the unit cell and the B are the eighth center of the unit cell, बोला गया है, बहुत सही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। पहले कोई भी चीज़ जब तुम सॉलिड स्टेट में ऐसा फॉर्मूला वाला कर रहे हो, पहला चीज़ जो तुम्हें होना चाहिए, इसको ड्रॉ करना चाहिए सब सही तरीके से, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद फिर एटम को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करो, जैसे मैंने ए को यहाँ पे करता हूँ, ए को बोला गया है कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स में पहले ए को मैं डालता हूँ, बहुत सिंपल है, ए को मैं कॉर्नर से डालता हूँ। और एक चीज़, ये चीज़ मैं करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके पहले न्यूमेरिकल कर लो, उसके बाद मैच इट कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, मेरे वाले से ये सही आ रहा है कि नहीं। और अगर तुम्हें लगे कि सर से तो सही नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, कि सर से गलत हुआ या मेरे से गलत हुआ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, सो यू कैन आस्क मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो ए आर एट द कॉर्नर एट द फेस सेंटर, फेस सेंटर में बोला गया, तो मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब वो कॉर्नर के बाद, अच्छा वो कॉर्नर मिस भी हो गया था ना, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये कॉर्नर तो मिस भी हो गया था, ये तो मेरा ही मिस्टेक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। चलो समझ में आ रहा है, यहाँ पे 6 सेंटर में 6 हैं।
और बाकी क्या बोला गया है, बाकी बोला गया है एच सेंटर है बी में। बी में क्या है, एच सेंटर, मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 12 जो सेंटर है वो 12 सेंटर में 12 एटम्स है, ठीक है। 12 सेंटर में 12 एटम्स है। बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेकिन फिर भी जितना भी मैं इससे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी है, ए में कितना आ रहा है, ए में इतना आ रहा है, ए में कॉर्नर में आ रहा है, तो मतलब 8 इंटू 1/8 आ रहा है। फेस सेंटर में कितना आएगा, फेस सेंटर में आएगा, बहुत सिंपल है, फेस सेंटर में आएगा 6 इंटू हाफ, कितना आ रहा है, तो मतलब आ रहा है 1 + 3, दैट विल बिकम 4। okay, so the atoms are b at the h center, atoms of b are at the h center। h center में कितना आ रहा है देख लो, h center में आ रहा है 12 है एज हम लोग के पास, तो 12 एटम है, ईच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 1/4, दैट विल बिकम 3। तो ए इज टू बी कितना आएगा, बहुत सिंपल है, ए इज टू बी आएगा 4:3, तो फॉर्मूला बिकम A4B3। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सही है, ये बहुत ईजी है, उतना टफ कुछ नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल A4B3, ओके। सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, बिकॉज इसके अलावा और भी तुम कर सकते हो, इसको तुम A12 B9 भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, हाँ। बट दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो दैट वी हैव, दैट इज 4:3। okay, I hope you understand the portion, okay। So the last numerical regarding the formula prediction having the crystalline solid unit cell structure, okay। तो लास्ट में क्या है देखते हैं, बोला गया है एक एलिमेंट है जो P और Q से क्रिस्टलाइज्ड है। P एटम्स कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, बहुत सही है। Q एटम्स कहाँ पे हैं, दे आर एट द बॉडी सेंटर एंड द अल्टरनेट फेसेस ऑफ द क्यूब्स, बहुत सही है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, अल्टरनेट फेस। सो P के बारे में क्या बोला गया है, P के बारे में बोला गया है दे आर द कॉर्नर्स, दैट मीन्स 8 इंटू 1/8, दैट इज टू सिंपल, दैट इज 1। Q के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बॉडी सेंटर में है, तो एक तो 1 होगा। अभी ऑल्टरनेट फेस सेंटर का क्या मामला है, ऑल्टरनेट फेस सेंटर का मामला कुछ ऐसा है, देख लो, बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ऑल्टरनेट फेस सेंटर का मामला कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक एटम है, मान लो जो Q हम लोग लिख रहे हैं, इसका ऑल्टरनेट मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा, बिकॉज ये तो पास में है, ठीक है। एक के बाद एक ऑल्टरनेट मतलब एक हुआ, उसके बाद 2 को स्किप करो फिर 3, उसके बाद 4 को स्किप करो फिर 5 को स्किप करो फिर 7। ऑल्टरनेट में क्या आ रहा है, तो इसके बगल में जो है वो तो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ये है और ये है, ये तो नहीं बिठा सकते, यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते, यहाँ पे भी बिठा नहीं सकते, यहाँ पे बिठा सकते हो। अभी अच्छी तरीके से देखो, ये चीज़ को समझो, ऑल्टरनेट फेज बोला गया है, तो मतलब यहाँ पे एक है, बहुत सही है। इसका ऑल्टरनेट कहाँ पे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, इसको ये तो एडजेसेंट है इसका, ये भी हो नहीं सकता, ये वाला ठीक है, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला हो नहीं सकता, ऊपर वाला हो नहीं सकता, ये साइड वाला हो नहीं सकता, ये इसका अपोजिट जो है ये हो नहीं सकता, इसका नीचे वाला नहीं हो सकता, तो ये तो सारे ऑल्टरनेट आ रहा है। ऑल्टरनेट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद, मतलब ये एक है, उसके बाद ये वैकेंट है, उसके बाद एक आएगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड द ऑल्टरनेट, ओके। यहाँ पे जो भी है, देखो जो भी है यहाँ पे वही वैसे ही हम लोग कर रहे हैं कि इसका भी वैसा ही है। देखो यहाँ पे एक है, उसके बाद ऑल्टरनेट में मैंने ये चारों फेसेस में कुछ दिया नहीं है, उसके बाद एक आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑल्टरनेट फेस में ही आ रहा है। तो Q का कितना आ रहा है, ऑल्टरनेट फेस में आ रहा है सिर्फ 2 मतलब एक के लिए हाफ आता है, तो 2 इंटू हाफ, तो इट विल बिकम 1 + 1, कितना आएगा 2। तो कितना रेशियो आ रहा है, P/Q का कितना रेशियो आ रहा है 1:2। तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा, फॉर्मूला आएगा हम लोग का P1Q2 दैट विल बिकम PQ2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। ये ऑल्टरनेट वाला जो मामला है ये थोड़ा ट्रिकी है, ये वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से देख लेना, अगर समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, फिर मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द पार्ट टू एक्सप्लेन the formula of the compound by having the crystalline solid unit cell structure. This is a very practical thing that we have, जो exam में in most of the cases आता है, a various kind of competitive exam, board exams and all, you have to memorize this thing, what I am trying to say. I hope you understand the portion, okay। so आज के लिए बस इतना ही, ये लेक्चर के लिए बस इतना ही। हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था, वी स्टार्ट अबाउट आवर फेमस यूनिट सेल पार्ट,
जहाँ पे we discuss about number of atom per unit cell, we discuss about the Z part having various kind of unit cell, then we go for the numerical part in which we discuss about some basic numerical that are come in exam, that will come in exam regarding the formula of the compound by knowing the structure of that unit cell crystalline solid. समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप यू अंडरस्टैंड द पोर्शन. जो भी है समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, गो फॉर दैट. ऑब्वियसली इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है. अपने दोस्तों से शेयर करो, जो क्लासमेट्स हैं उन लोगों से शेयर करो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना एक बार, अच्छा लगेगा मुझे, और भी ज़्यादा एनर्जाइज्ड होकर तुम लोग को समझाऊंगा. Okay, so this is the lecture 3 of the solid state chemistry. In the next lecture we are going to have the cubic close packing structure, where it is a tricky one, where we are going to have some basic concept of the how basic concept that how the atoms are going to be associated to each other having this kind of gigantic steady structure. Because मैंने बोला कि ये structure जो है, ये जो atoms हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता है. These are something looking like this. Okay, these are something looking like this, and we will go to that part in the next lecture, that how this kind of close packing arrangement is happen. And regarding this arrangement we have several classifications. जहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से आता है, वहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता है, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. और कुछ पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, कुछ अलग अलग क्रिस्टल का, अलग अलग यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, वो चीज़ बाकी है. तो ये चीज़ कुछ देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम एक्सप्लेन टू यू. आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, गो फॉर द शेयर बटन, उसको क्लिक करो, शेयर करो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉल्ड B.Chemistry. So thank you for listening. I hope you understand the part verifiably. Thank you. See you in the next video.